Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing, and I'm with the part 5th of the previous video, that is abortion. Today I'll be discussing about the induction of the abortion, that is the last type of the abortion which we had discussed, in which comes the medical termination of the pregnancy. Actually, this medical termination of the pregnancy, it is induced. We really induce this type of abortion deliberately. So induction of the abortion, we can say deliberate termination of the pregnancy, either by a medical or by surgical methods, and before the viability of the fetus, is called as induction of the abortion. The induction abortion, it may be legal or illegal, that is criminal. And there are many countries in the globe where the abortion is not yet legalized, and in India the abortion was legalized by medical termination of the pregnancy act of 1971, which you already know, and then it came into force in 1972, and the provision of the revision of this was done in 1975, which you might be already knowing. Now coming to the medical termination of the pregnancy, since the legalization of the abortion in India, or we can say the deliberate induction of the abortion by the registered medical practitioners, in the interest of the mother's health, right, and the life to be protected if the mother's life is in danger under this MTP Act. So there were the few provisions which were laid down under this act. The first one was, if this pregnancy, continuation of this pregnancy would have the serious life injury, or we can say the grave injury to the physical and the mental health of any pregnant women. The second provision was that there is a substantial, if there is a substantial risk for the child being born with serious, let it be the physical or the mental abnormalities, so as to be the handicapped in life, then we can go for the medical termination of the pregnancy. The third one, when the pregnancy is caused by a rape, and both in cases the major or the minor girl, whether they have been raped, and in the mentally imbalanced women, then we can go for the MTPs. And the last one, if there the pregnancy is caused as a result of the failure of the contraception. So these were the provisions which were laid down in the MTP Act 1975. Indications, there are various indications why the medical termination of the pregnancy is done, or there were various indications for the termination under the MTP Act. The first indication was to save the life of the mother. We can say this can be the medical termination, or we can say this is the therapeutic termination of the pregnancy. And nowadays, except a few cases, like for example, to save the mother's life, there can be the cardiac diseases, right, which have been reached to the this grade 4th or grade 3rd. And we can say chronic glomerular nephritis may be the case, epilepsy or any psychiatric illness, with the advice of the psychiatrist, or malignant hypertension, or we can say cervical or breast malignancy, or diabetes mellitus, with any type of the retinopathy. So in order to save the mother's life, this is the first indication which has been included in the MTP Act. The second is the social indication. The social indication, this is almost the sole indication, and it cover it it has the provision to prevent the grave injury to the physical and the mental health of the pregnant woman.
And if in case it has been seen that if the woman has the unplanned pregnancy with the low socio-economic status, so or the pregnancy caused by the rape or unwanted pregnancy due to the failure of any contraceptive use, they fall in this category also, in the social indications. Then eugenic indications, it can be done under the provision that there is very much risk, or we can say the substantial risk of the child being born with a serious physical or mental abnormalities, कि वो लाइफ लॉन्ग तक handicapped हो जाए, and whether it is structural abnormality like an encephaly, or chromosomal like the Down syndrome, or genetical like hemophilia abnormalities, or when the fetus is may be having the deformed due to the action of any tetragenic drugs, for example warfarin, or radiation exposure की वजह से उसको कुछ problem हो जाएगी, chromosomal abnormality, or any sort of the viral infection has been affected to the mother in first trimester, for example rubella, उसकी वजह से भी वो भी indication eugenic में बन सकती है, and we can go for the medical termination of the pregnancy. Now, there are various methods for the medical termination of the pregnancy. There are two methods: the medical method and the surgical method. Basically, this what is called as MTP, the medical termination of the pregnancy, it can be carried out either in the first trimester or in the second trimester. So, we will firstly briefly discuss about first trimester termination of the pregnancy, that is the medical termination of the pregnancy in the first trimester. We go, as I told you, we go for the two methods, the medical and the surgical method. Talking firstly about the medical methods of the first trimester abortion, we can go for the mifepristone or the misoprostol. These are the drugs which are analog to the progestin, right? To the progestin, and they act as the antagonist, or I can say blocking effect होता है उनको to the natural progesterone. ठीक है ना, जो प्रोजेस्टेरॉन का नेचुरल इफ़ेक्ट होता है कि किस तरीके से वो प्रेगनेंसी को सिक्योर करता है, उसका बिल्कुल भी वो ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट करते हैं ये दो ड्रग्स. And in addition, we go for the low dose of prostaglandins, PGE1, which improves the efficiency of first trimester abortion. And it is mostly, हम देखते हैं लगभग 63 days तक इसकी सक्सेसफुल और इफ़ेक्टिवनेस रेट, और दिस इफ़ेक्टिवनेस रेट बहुत ही रहती है लगभग 63 days तक, और ये सक्सेसफुल होता है लगभग अगर हमने विद इन 49 days ऑफ गेस्टेशन ये किया होगा. ये वाले दो ड्रग्स इन एडिशन टू द प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगर हम देंगे, इनका ये प्रोटोकॉल रहता है कि for example, if we talk about the one drug that is mifepristone, लगभग वो 200 mg हम देते हैं once a day, ठीक है ना, on first day, ठीक है ना, day 1, and on day 3 पे हम misoprostol देते हैं, ठीक है ना, लगभग 400 micrograms orally. ठीक, या अगर ऑरली नहीं दे सकते हैं तो हम पर वजाइना में 800 माइक्रोग्राम्स उसका देते हैं. फिर क्लाइंट को हम बोलते हैं क्लिनिक्स में रहने के लिए जब तक कि वो पूरा एक्सपल्शन उसका कंसेप्टस का ना हो जाए, एंड देन द पेशेंट इज़ री एग्जामिनेड आफ्टर अबाउट 10 to 14 days, 2 हफ्तों के बाद, देन वी कैन सी द कंप्लीट अबॉर्शन हैज़ टेकन प्लेस. लगभग 95% ऑफ द केसेस जिनको हमने ये वाला प्रोटोकॉल दिया होता है, लगभग उनको कंप्लीट अबॉर्शन हम उनमें देखते हैं. और इनकम्प्लीट अबॉर्शन कुछ पोर्शन में भी रह सकता है इन ओनली 2% ऑफ द केसेस, तो क्या उसको बोलते हैं वो हो सकता है. लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई पेशेंट हमें इस वाले प्रोसीजर को रेस्पॉन्ड ही नहीं करे, बट दे आर वेरी रेयर, अबाउट 1% ही वो रहता है. सो दिस what is called as, and the government has approved this MTP up to 63 days of the pregnancy, and this medical method, it is very much safe, effective, and having the minimal or no complications at all. द सेकेंड मैथड, द सर्जिकल मैथड हम कह सकते हैं. सर्जिकल मैथड मतलब मगर किस में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बात हो रही है. सर्जिकल मैथड में हम वैक्यूम एस्पिरेशन कर सकते हैं, जो कि हम
12 वीक्स तक कर सकते हैं। इसमें हमें ज़्यादा सर्विकल डायलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें सीधे ही प्लास्टिक वो जो डिस्पोजेबल कैनुला होता है जिससे हम एस्पिरेशन करते हैं, लगभग उसका साइज़ 12 का साइज़ होना चाहिए। And we need a syringe, almost greater than 50 ml plastic syringe होना ताकि उससे हम एस्पिरेट कर सकते हैं द कंटेंट्स, एंड इट इज़ वेरी क्विक एंड इफ़ेक्टिव एंड सेफर दैन द डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, हम बोल सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं सक्शन एंड इवैक्यूएशन, और वी कैन से सक्शन, इवैक्यूएशन और क्यूरेटेज। इसमें थोड़ा सा मेथड इम्प्रोवाइज़ होता है। सक्शन मशीन हमें ज़रूरत होती है जिसके आगे हम फिट करते हैं कैनुला, इधर प्लास्टिक का या मेटल का कैनुला आगे से हम फिट करते हैं ऑफ वेरियस साइजेस। क्या इसको बोलते हैं, इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि ये ईजली मेथड है एंड यू कैन it is ideal termination for the therapeutic indication also। और जनरल एनेस्थीसिया का जो हैज़ार्ड्स है वो भी एब्सेंट रहता है, और ब्लड जो लॉस होता है, मतलब ब्लड ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है इससे, एंड इट इज़ वेरी मच ईजी वो हो सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये भी रह सकता है क्योंकि इसका क्या उसको बोलते हैं, रुका इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें मशीन की ज़रूरत पड़ती है, मशीन कॉस्टली हो सकती है, तो वो सब इसके ड्रॉबैक्स रह सकते हैं। एंड लास्टली वी गो फॉर द डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, जो कि क्या उसको बोलते हैं, ईजी मेथड रहता है जिसमें हम या तो रैपिड मेथड कर सकते हैं या तो स्लो मेथड, जिसमें धीरे धीरे करके हम लैमिनर्स इंसर्ट करते हैं ताकि डायलेट हो जाए सर्विकल कैनाल। उसके बाद हम इवैक्यूएशन प्रोसीजर करते ही है। तो सर्विकल इंजरी इसमें डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन में कम होती है, और ये सूटेबल रहता है फॉर थेरेपेटिक इंडिकेशंस एज वेल। लेकिन इसका ये भी है कि ड्रॉबैक ये भी रहता है कि इसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है फॉर a day or two, and they have the various a little bit chances, if not taken care of, sepsis के chances रहते ही है। और अगर कॉम्प्लिकेशंस अच्छे से नहीं किया होगा तो कॉम्प्लिकेशंस डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन में हो सकते हैं। सो they were the two methods, the medical and the surgical method done in the MTPs, but in the first trimester. Now, if we go for the mid-trimester termination of the pregnancy, there are also the two methods, the medical method and the surgical method. In the medical methods, in mid-trimester we go for the prostaglandins. हम prostaglandins या उनके एनालॉग देते हैं, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहते हैं। दे आर यूज एक्सटेंसिवली इन स्पेशली वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड ट्राइमेस्टर। वो क्या करते हैं, दे विल एक्ट ऑन द सर्विक्स या यूट्रस, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स ई की बात हम करेंगे या प्रोस्टाग्लैंडिन्स एफ की बात करेंगे, वो ज़्यादा ही यूज़ किए जाते हैं, एंड दे हैव द वेरी मच सेलेक्टिव एक्शन ऑन द मायोमीट्रियर एंड लेस साइड इफ़ेक्ट रहता है उनका। चाहे हम उसमें मीज़ोप्रोस्ट्रॉल यूज़ करें, जो पिछले टाइम भी हमने यूज़ किया था इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज़ PGE1, या प्रेस्ट्रॉल को यूज़ करें, या इसमें हम डाइनोप्रोस्टोन को भी यूज़ कर सकते हैं, या प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देर आर वेरियस प्रोस्टाग्लैंडिन्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन द मिड दिस ट्राइमेस्टर, ये हम कर सकते हैं। एंड हम जैसे कि अगर मैं मीज़ोप्रोस्ट्रॉल की बात करूं, इसमें भी हम 400 to 800 माइक्रोग्राम्स मीज़ोप्रोस्ट्रॉल वेजाइनली दे सकते हैं, लगभग 3 to 4 आवर के इंटरवल पे। और क्या उसको बोलते हैं, उसके बाद हम ऑरली भी दे सकते हैं 3 आवर्स में, ऑल्सो मतलब कभी कभी दे सकते हैं ऑरली भी, जिसकी वजह से दिस रिजीम रिड्यूसेस द नंबर ऑफ द वेजिनल एग्जामिनेशंस, एंड कभी कभी इनका डोज लगभग सबलिंगुअल भी हम दे सकते हैं एवरी 3 आवरली। तो ये सब करके हमारा सक्सेस रेट अच्छा हो जाता है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द एबॉर्शन। नाउ सेकेंड हम जो
सर्जिकल मेथड में यूज़ करता है वो है ऑक्सीटोसिन, हाई डोज ऑक्सीटोसिन एज अ सिंगल एजेंट यूज़ करता है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, एंड इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव लगभग 80% ऑफ द केसेस में, एंड इट कैन बी यूज्ड विद इंट्रावेनियस नॉर्मल सैलाइन, और क्या उसको बोलते हैं मतलब इंट्रावेनस नॉर्मल सैलाइन में हम डालते हैं लगभग ये, और इसकी ड्रिप रेट हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं लगभग 50 मिली यूनिट्स पर मिनट, एंड वी कैन गो फॉर द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इन द मिड ट्राइमेस्टर टर्मिनेशन pregnancy. The second method is the surgical method, which we can go in the mid trimester termination, and it is very it is difficult to terminate the pregnancy in the second trimester, because with a reasonable safety as in the first trimester, ठीक है ना, उतनी safety नहीं होती है first trimester में pregnancy save करने की जितनी हमें second trimester, so it is a little bit different. तो दो स्टेजेस पे किया जाता है ये सर्जिकल मेथड अप्लाई, बिटवीन 13 वीक्स एंड 15 वीक्स और बिटवीन 16 एंड 15 वीक्स पे। अगर हम बिटवीन 13 एंड 15 वीक्स तब हम डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं, जो जो लेस कॉमनली हम यूज़ करते हैं। यूजुअली हम जो प्रेगनेंसीज होती है 13 to 14 वीक्स पे, तो फिर हम इवैक्यूएशन के लिए जाते हैं, एंड क्या इसको बोलते हैं, अगर मिड ट्राइमेस्टर में चाहे इस वाले बिटवीन 13 एंड 15 वीक्स में हम अबॉर्शन करें, सर्विकल प्रिपरेशन होना मस्ट होता है ताकि प्रोसेस ईजी और सेफ हो जाए। दैट मीन्स डायलिटेशन हमें करनी पड़ती है ऑफ द सर्विक्स, या कभी कभी हम इंट्रा सर्विकल टेंट्स लेमिनर जिसको बोलते हैं, या मेफेप्रेस्टोन जो मैंने ऑलरेडी बात की थी, मिजोप्रोस्टोन, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम फॉर सर्विकल प्राइमिंग एजेंट। And this procedure may need the ultrasound guidance also, ताकि risk of जो complications है वो reduce हो सकती है। तो इसके साथ साथ इस DNE के साथ साथ सर्जिकल मेथड में हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन भी देते हैं ताकि contractions आती रहे। The second one is the between 16 weeks and the 15 weeks. इसमें हम क्या इसको बोलते हैं, इंट्रायूट्रिन इंस्टॉलेशन ऑफ द हाइपरटोनिक सोल्यूशन करते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन हम इंसर्ट करते हैं या तो एक्स्ट्रा एमनियोटिकली या तो इंट्रा एमनियोटिकली, मतलब हाइपरटोनिक। अगर एक्स्ट्रा एमनियोटिकली हम बात करेंगे, हम या तो क्या इसको बोलता है, नॉर्मल सलाइन भी हम इसमें दे सकते हैं, है ना, सलाइन इन्स्टॉलेशन करते हैं यूजुअली। तो कैथेटर पास करते हैं थ्रू द सर्विकल कैनाल लगभग फॉर अबाउट 10 सेंटीमीटर अबाउ द इंटरनल ऑस, बट बिटवीन द मेम्ब्रेनस एंड द मायोमेट्रियम, ठीक है ना। और क्या इसको बोलता है, वहाँ पे वो इन्फ्लेट किया जाता है और नॉर्मल सैलाइन को इंसर्ट किया जाता है मतलब थ्रू द कैथेटर। दैट मीन्स इट इज़ डन ट्रांससर्विकली, हम ये करते हैं मेथड। यूजुअली हम फोलीज कैथेटर इसमें यूज़ करते हैं, और जो वो कैथेटर है वो पास किया जाता है टू द सर्विकल कैनाल फॉर अबाउट 10 सेंटीमीटर अबाउ द इंटरनल ऑस, मगर बिटवीन द मेम्ब्रेनस एंड द मायोमीट्रियम, ठीक है ना। फिर वो जो बलून होता है उसका वो इन्फ्लेट किया जाता है विथ सैलाइन लगभग 10 ml का। उसके बाद 4 घंटे के बाद वो रिमूव किया जाता है, एंड क्या इसको बोलते हैं, वो रिमूव कर सकते हैं हम। इन केस अगर नॉर्मल सैलाइन कभी कभी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो इसमें हम दूसरा ये क्या इसको बोलते हैं फ्लूइड भी यूज़ करते हैं, 0.1 इथारकार्डिन लैक्टेट उसको हम बोलते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इंट्रा एमनियोटिकली भी हम क्या इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन को इंसर्ट करते हैं, बट इट इज़ वेरी मच लेस, क्योंकि प्रिलिमिनरी हमें क्या इसको बोलते हैं एमिनो सिंथेसिस की मदद से नीडल इनसाइड ये ना इंसर्ट करनी पड़ती है, फिर सैलाइन को इंसर्ट करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से हम इंट्रा एमनियोटिकली सैलाइन को क्या इसको बोलते हैं इंसर्ट करते हैं इसमें।
बेसिकली क्या इसको बोलते हैं, देर आर वेरियस प्रिकॉशंस भी मैं कह सकती हूँ जो हम इसमें इन ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशंस लेते हैं, क्योंकि हमें श्योर होना है नीडल जो क्या इसको बोलते हैं, दिस टू बी श्योर दैट द नीडल इज़ इन द एमनियोटिक कैविटी, है ना। तो उसके लिए हमें यूएसजी का कम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, एंड द इंस्टॉलेशन शुड बी वेरी मच स्लो, ठीक है ना। बेसिकली फिर ये कैसे मोड ऑफ एक्शन, आप पूछोगे कि मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, वहाँ पे जब हमने इंस्टॉलेशन किया, चाहे इंट्रायूट्रिनली किया या एक्स्ट्रा क्या इसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा एमनियोटिकली किया, वहाँ पे लिबरेशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो क्यों हो जाता है, क्योंकि एमनियोटिक एपिथेलियम या डेसिडुअल के बीच में दे स्टार्ट डिटैचिंग एंड देयर इज़ द नेक्रोसिस ऑफ दैट, जिसकी वजह से दिस इन टर्न एक्साइट्स द यूट्रीन कंट्रैक्शंस, जिसकी वजह से एक्सपल्शन ऑफ द फीटस होता है। ऐसे ही होती है ये वाला प्रोसीजर। Now coming to the complications of the MTPs, there are various complications. There is no universal safe, मैं कह सकती हूँ, या effective method which is applicable to all the cases. So however there are some of the complications, not much in the MTPs. Immediate भी हो सकती है और remote. Immediate complications ये हो सकती है, injury to cervix हो सकता है, uterine perforations जब हम DNA करते हैं, hemorrhage, shock हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मे बी इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ होगा, या एटॉनिक यूट्रस हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है ना, या पेन, ब्लीडिंग, जिसकी वजह से क्या उसको बोलते हैं, लो ग्रेड फीवर वगैरह भी हो सकता है, ठीक। ये इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में आ सकता है। और रिमोट कॉम्प्लिकेशंस में आपको गायनोकोलॉजिकल या ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे गायनोकोलॉजिकल में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, क्रॉनिक पैल्विक इन्फ्लेमेशन, या क्या उसको बोलते हैं यूट्रीन स्नैचे, वो जो मैंने ऑलरेडी बोले थे वो स्नैचे फॉर्म हो सकता है। ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस में आपको रिकरेंट मिड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन हो सकता है ड्यू टू द सर्विकल इनकम्प्टेंस। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ की रेट्स इंक्रीज़ हो सकती है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, डिसमेच्योरिटी हो सकती है, रप्चर ऑफ यूट्रस हो सकता है, इस या बिल्कुल भी फेल एबॉर्शन हो सकता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूड प्रेगनेंसी हो सकती है। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द MTPs. Thank you. This was all about your the abortion, the different types of the abortion. Hope you got this portion very clearly, and I'll be with the next topic inshallah soon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.